جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افسوسناک واقعہ، افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا۔ 8 سے 10 افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر چڑھائی کی۔ پاکستانی سفارتی حکام نے معاملہ جرمن حکام کے ساتھ اٹھا دیا۔ جرمن حکام کی جانب سے پوری تحقیقات کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ افغان شہریوں کی جانب سے پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا گیا۔ 8 سے 10 افغان شہری بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانی قونصل خانے پر چڑھائی کی ہے۔ پاکستانی سفارتی حکام نے یہ معاملہ جرمن حکام کے ساتھ اٹھا دیا ہے۔ جواب میں جرمن حکام کی جانب سے پوری تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد، اپڈیٹ کیجیے گا، اس میں کوئی اپڈیٹ آئی ہے سامنے، تحقیقات ہوئی کچھ؟ لیکن جو افغان نیشنل ہے وہ ایک انتخاب پسندی کا رویہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کابل میں پاکستانی سفارتخانہ ہو یا کسی اور ملک میں ہو، وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز جو ہے رویہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کا واقعہ جو فرینکفرٹ میں پیش آیا، جہاں پہ کیونکہ پاکستان جو ہے ان کے ڈاکومنٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے، فرینکفرٹ میں جو افغانی فرینکفرٹ میں موجود ہیں یا جرمنی کے کسی شہر میں جاتے ہیں تو پاکستانی سفارتخانے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے، اور وہاں پہ ایک لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں افغانی وہاں پہ موجود ہیں جو جرمنی میں کام کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی ایسی دستاویزات میں مشکل پیش آتی ہے یا بڑی لائنیں لگ جاتی ہیں یا رش ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہنگامہ رائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی رویہ کابل میں بھی ہوتا ہے، اور یہی رویہ اب فرینکفرٹ میں دیکھنے میں آیا کہ ایک بڑی تعداد جو فرینکفرٹ کی قونصل خانے کے باہر موجود تھی، انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ رائی کی اور وہاں پہ ہمارے قونصلیٹ جو ہے ان کے اوپر دھاوا بول دیا اور پتھراؤ بھی کیا اور پاکستانی پرچم وہاں سے اتارنے کی بھی کوشش کی۔ لہٰذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب جرمن حکام کے سامنے ہمارے قونصلیٹ نے، اور اب جرمنی میں برلن میں ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے یہ سارا معاملہ جرمن حکام کے سامنے اٹھایا، اور جرمن حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے گی اور جو لوگ اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا پاکستان نے باضابطہ طور پر اپنی شکایت جو ہے وہ جرمن حکام کے سامنے پہنچائی ہے، جبکہ دوسری جانب دفتر خارجہ بھی اب سے کچھ دیر بعد اپنا ریٹرن بیان جو ہے وہ جاری کرے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا خالد محمود۔ آگے بڑھتے ہیں، موسم کا حال آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کراچی میں گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے، سمندری ہوائیں غیر فعال ہیں۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کراچی میں گرمی اور حبس کا راج، سمندری ہوائیں غیر فعال۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں ہلکی بارش کی پیشگوئی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان۔ کراچی میں گرمی اور حبس کا راج، سمندری ہوائیں غیر فعال۔ صورتحال جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ دعا عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دعا بتائے گا۔ جنہیں کہ کل اور پرسوں شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی ہلکی اور تیز بارش کے باوجود آج کراچی کا موسم گرم و مرطوب ہے۔ یہ موسم جو ہے شہریوں کی سمجھ سے بالا تر ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی گزشتہ دنوں بارش ہوئی اس وقت تو موسم خوشگوار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ موسم لمحہ بہ لمحہ جو ہے تیور بدلتا رہا گزشتہ چند روز کے دوران جو ہم نے دیکھا، اور یہ جو گرمی ہے یہ شہریوں کو مزید جو ہے پریشان کر رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق پیشگوئی کی گئی ہے کہ آج بھی موسم گرم و مرطوب رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مختلف سمتوں سے ہلکی ہوائیں چلنے کا امکان تو موجود ہے، اور آج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ آج شام سے اور رات تک ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ پیر یعنی کل کو بھی موسم گرم و مرطوب رہے گا، حبس کا بھی امکان ہے، لیکن منگل سے جو ہے یہ گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے۔ جی دعا عباس، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئندہ ہفتے ملک میں بھرپور بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب و خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہو کر بارش برسائیں گی۔ اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں پیر سے جمعرات تک بادل برسیں گے۔ 8 سے 27 جولائی کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش ہوگی۔ بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں منگل اور بدھ کو بارش متوقع ہے۔ آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئندہ ہفتے ملک میں بھرپور بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ ڈاکٹر آصف کرمانی نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کافی عرصے سے
खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से राहें अलग कर ली। काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं इंतशार में मुलव्वस लोगों को तहक़ीक़ात का हक़ नहीं है। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके रोक धरने में शामिल थे। वहाँ की हुकूमत को हक़ नहीं होना चाहिए कि खुद इसकी इंक्वायरी करे। बन्नू में हालात नॉर्मल हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। सियासी क़ुव्वतों ने ताजरों का अमन मार्च ख़राब करने की कोशिश की। किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग की गई। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अच्छा होता बानी पीटीआई वाक़े की मजम्मत करते, ये कहा गया वफाकी वजीर अता तारड़ की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए सूबाई कमीशन को मुस्तरद कर दिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर का मुतामिल नहीं हो सकता। मजीद बता रहे हैं नई मस्कर अपनी रिपोर्ट में। भाई मुस्लिम लीग वाला आप कर क्या रहे हैं? इन हालात में आप क्यों हुकूमत ले रहे हैं? हालात के तहत समझ रहे थे कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी रास नहीं आ रही उनको जी। मुश्किलात में पड़ गए वो भी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। PTI हुकूमत KP में है, तब भी वो इस्तीफ़ों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नए इलेक्शन होने चाहिए और इस सब नए तहलील कर दिए जाए। PTI के हवाले से ये सोचें कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान 10-12 साल तल्ख़ ताल्लुक़ात रहे हैं, उनको सिर्फ नॉर्मलाइज करना है। मैं हज़रत किसी सियासतदान के ऊपर मुकदमे दायर करना, उनको जेलों में रखना, कैद बंद करके, मैं तो इलेक्शन से पहले आपको याद है कहता रहा कि अब तो इमरान खान के साथ मैं इसलिए भी लड़ना नहीं चाहता कि मेरा वो मुखालिफ है वो जेल में है, मैं बाहर हूँ। सरबराह JUI ने इंतखाबात से मुताल्लिक तजावीज़ भी दी। इलेक्शन एक दिन हुए होने चाहिए, चाहे वो कौमी सूबाई असम्बली का हो चाहे बल्दियात का हो। ये जो हमारे यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अमन जलसों का भी ऐलान कर दिया। कहा 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन मुनक्किद होगा। नई मस्कर एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद। अहम खबर PTI रहनुमा शफकत महमूद का सियासत से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं बहुत सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। बाकी अपनी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। किसी और सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा और सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। कराची के इतवार बाजारों में गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सारिफीन कहते हैं कि सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़माने काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ बताएगा। मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिशों की वजह से कराची की मरकजी सब्जी मंडी को सब्जी की सप्लाई के अंदर नुमाया कमी वाक़ हुई है। तकरीबन जो आज आमद रिकॉर्ड की गई सब्जी लाने वाली गाड़ियों की उसमें 50% तक कमी देखी गई, जिसके असरात फौरी तौर पर कराची की रिटेल की सतह पर मुतरतब हुए हैं। इस वक्त हम बचत बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ आम बाज़ारों से बारियायत कीमत के ऊपर अशिया फ़रोख्त की जाती थी। इस वक्त अगर यहाँ बचत बाज़ार के नर्ख देखे जाएँ तो सरकारी निर्खनामे से दुगना और कुछ सब्जियाँ 3 गुना
जायद कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर टमाटर की बात की जाए तो सरकारी उसका रेट 110 रुपये है, लेकिन यहाँ पर टमाटर 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तोरी की कीमत सरकारी लिस्ट के अंदर 50 रुपये है, लेकिन यहाँ पर तोरी की कीमत 150 रुपये से 180 रुपये वसूल की जा रही है। गोभी की सरकारी कीमत 50 रुपये मुकर्रर है, लेकिन गोभी यहाँ पे 150 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। सब्जी फरोशों का यही कहना है कि मंडी की सतह पर सरकारी कीमतों का इतलाक नहीं होता, जिसकी वजह से खोर्दा सतह पर भी अमल दरामद नामुमकिन होता है। और आने वाले दिनों में जब ये बारिशों का सिलसिला मजीद तेज़ होगा, उसके बाद सब्जी की कीमतों में भी मजीद इजाफे का खदशा है। आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो एटलीस्ट जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली गैस के जो नर्ख हैं, इसके अलावा पेट्रोल के जो नर्ख हैं, इसके अंदर कमी लाए ताकि लोगों जो ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी ज़िंदगी आसान हो सके। जी काशिफ हुसैन, आपका शुक्रिया। लाहौर में शहरियों का कहना है इतवार बाजारों में भी अशिया की कीमतें आम मार्केट के बराबर ही हैं। आसिफ महमूद से तफसीलात जानते हैं। आसिफ महमूद, बताइएगा। हम लोग जो शादमान में इतवार बाजार लगा यहाँ पर मौजूद है। माजी की निस्बत देखा जाए तो इतवार बाजार जो वो सुकड़ता जा रहा है। इस वक्त जो नाले के साथ एक फुटपाथ है उसी के ऊपर ये दुकानें जो है वो लगी हैं। और हैरान कुन बात ये है कि यहाँ पे ना ही तो इंतज़ामिया का कोई बंदा जो है वो नज़र आ रहा है, और ना ही यहाँ पे जितनी भी फल सब्जियों की दुकानें लगी हैं किसी भी जगह पे कोई रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा की गई है। इंतज़ामिया की तरफ से तमाम दुकानदारों को रेट लिस्ट दी ज़रूर जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी शख्स ने जो है वो रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा नहीं की। इसी वजह से जो हुकूमत की तरफ से जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो उसके मुताबिक फ़रोख्त की जा रही हैं, बाकी तमाम फल और सब्जियां जो उनकी मुकर्रर कीमत है उनसे कोई 10 रुपये फ़ी किलो, कोई 20 रुपये और कोई 50 रुपये फ़ी किलो महंगी जो है वो बेची जा रही हैं। बड़ी वजह यह कि यहाँ पे लोगों को जो है वो एक जगह पे बहुत सारी फल और सब्जियाँ जो है वो इकट्ठी मिल जाती हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर मुआवजा करें आम मार्केट का और यहाँ का, तो रेट में कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंतज़ामिया को बंदा ही नहीं है, तो इस तरह दुकानदार जो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जी आसिफ लाहौर से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, लाहौर के बाद रावलपिंडी की बात कर लेते हैं, जहां के सस्ते बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील मिर्जा से। बताइएगा जमील। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इतवार सस्ता बाजार कमेटी चौक में। नाम तो सस्ता बाजार है, महंगाई से तंग आए हुए लोग जब सस्ता बाजार का रुख करते हैं तो यहाँ भी उनका सामना महंगाई से होता है। बात करें अगर सब्जियों के रेट की, तो अदरक जो है वो 820 रुपये किलो और लहसन जो है वो 600 रुपये किलो बिक रहा है, और इसी तरीके आलू 100 रुपया और प्याज जो है वो 130 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी जो है वो 150 रुपया किलो बिक रही है। अगर फ्रूट की बात करें तो आम 150 से 250, आलू बुखारा 150 से 250 में बिक रहा है। बाकी आड़ू 200 रुपए किलो में बिक रहा है। से सारे फ्रूट हैं 2-2, 3-3 रेट हैं। क्वालिटी का मामला है। महंगाई से तंग आए हुए लोग जो हैं वो सस्ता बाजार आते हैं तो महंगाई यहाँ भी उनका मुंह चढ़ाती है। लोग कहते हैं ना रेट है ना कंट्रोल है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। जी शुक्रिया जमील मिर्जा अपडेट करने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए इतना है। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।